Hello everyone, how are you all? My name is Hitesh Mehta. I welcome you all once again to my channel. So in this video, we are going to solve the sample question paper launched by CBSE for the subject Computer Science. Okay, so without wasting any time, let's get started. बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, please subscribe to my channel and like the video if you really want to appreciate my hard work. So let's get started. So जैसे कि आप सब देख सकते हैं, this is the CBSE sample paper for the session 21 to 2022. Okay, so the code is 083 and maximum marks is 35. So the maximum marks you will get marks out of 35 and the time allowed is 90 minutes, that is 1.5 hour time. And I guess for 35 mark paper it is a sufficient time. Okay, so let's get started with the general instructions. The general instruction says the question paper is divided into three sections, A, B and C. So this is the part 1 of the video. In this video we are going to solve questions of section A and section C. Okay, question of section B are coding related, completely coding related. We'll be doing in the separate video, which will be the next video. Okay, so section A consists of 25 questions, 1 to 25, attempt any 20. So आपको बहुत अच्छी choice मिल रही है यहाँ पर. Out of 25 questions, you have to attempt only 20 questions. Same with section B, but in section B there are 24 questions and you have to attempt only 20. Okay, now in section C there are 6 case study based questions, which out of which we have to attempt only 5 questions. Okay, so how many questions in all? 20, 20 and 5, 45 questions. So आपको confusion हो सकती है कि marks तो भाई 35 है and how are they 45 questions? So 45 questions है but ये 1 mark each के नहीं है. They are 0.77 approximately marks के each question is of 0.77 mark each. So आप जितने भी क्वेश्चन सही करेंगे उसको, सपोज आपका स्कोर आया 40, suppose you have scored 40 marks out of 45, so it will be multiplied by 0.77 and then you will get your score, okay, out of 35. So you have to attempt 40 questions in 90 minutes. पर क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम है, बट हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि देर आर सम क्वेश्चन जिनको आपको विद इन 10-20 सेकेंड्स भी सॉल्व करना आना चाहिए. बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, यू कैन सॉल्व इन 10-20 सेकेंड्स. एंड कई क्वेश्चन होंगे लाइक सेक्शन बी में, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन बी विल बी कम्प्लीटली कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन. सो बड़े बड़े कोड्स होंगे, यू विल टेक टाइम. You can take more than 2 or 3 minutes, okay, to solve each and every question. So 2 minutes per question मान के मत चलना. बस हमें इतना देखना है कि हमारे पेपर हमारा जल्दी खत्म हो जाए. We should have at least 15 to 20 minutes for a revision, for a revisiting the questions जो हमने पहले छोड़े थे. So let's get started with the section A. So there are 25 questions as I have told you and attempt only 20 questions. So first question, we'll find the invalid identifier out of these. Which of these is an invalid identifier? None, address, name or pass. So which will be the correct answer? The correct answer is obviously pass. Why? क्योंकि pass हमारा एक keyword है. Keyword को we cannot assign a value. ठीक है, कीवर्ड पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, उनकी वैल्यू असाइन नहीं करी जा सकती. ओके, अब आप बोलोगे ये नन भी एक कीवर्ड है, बिकॉज हमने देखा है नन, बट नन भी कीवर्ड है. नन दैट इज विद कैपिटल एन. नन विद कैपिटल एन इज अ कीवर्ड, बट विद स्मॉल एन इट कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर. एंड ये दोनों एड्रेस एंड नेम तो यूज किए जा सकते हैं. ओके, so moving on to question number 2. so देखा आपने, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, within 5 to 10 seconds you can even solve. Moving on to question 2, consider a declaration this which of the following is the data type. बहुत easy questions हैं, they are just इन्होंने ये वैल्यूज ऐसी डाली हैं कि बस हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाए. तो हम देखते कैसे हैं कौन सा डेटा टाइप है. ब्रैकेट्स को देखिए, पैरेंथेसिस को देखिए, तो दे आर राउंड ब्रैकेट्स. राउंड ब्रैकेट्स कहाँ होते हैं? ट्यूपल में. So correct answer is tuple.
लिस्ट में कौन से होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्ट्रिंग में तो कोट्स होते हैं. Okay, given this tube 1, which of the following will be giving us the output of this? Print tube 1 of 3 to 7 to 2. Now what is this? This is tuple की slicing. Just like list slicing and string slicing, this is tuple की slicing. ओके, सो हमें क्या करना है? थर्ड इंडेक्स से 7 इंडेक्स, एंड वी नो कि जो हमारी एंड पोजीशन होती है उससे 1 लेस तक चलता है. तो ये थर्ड इंडेक्स से 6 इंडेक्स तक चलेगा एंड विद अ स्टेप वैल्यू ऑफ 2. यानी ये 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 3 के बाद 5 आएगा एंड 5 के बाद 7 आएगा. 7 तो बट हम ले नहीं सकते, तो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज. हमें दो ही वैल्यूज मिलेंगी, एक थर्ड इंडेक्स की एंड एक फिफ्थ इंडेक्स की. तो अगर आपने सिर्फ इतना भी दिमाग लगा लिया तो ऑप्शंस आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. सो ऑप्शन ए गलत हो गया, इसमें 5 एलिमेंट्स है. ऑप्शन बी गलत हो गया, इसमें 4 एलिमेंट्स है. ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत है ना? ये तो ट्यूपल है, हमें इनपुट ट्यूपल दे रखा और आउटपुट में लिस्ट दे रखी. दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग. तो आपको बिना कैलकुलेट किए भी यू कैन कैलकुलेट द आंसर डी. ओके, वैसे आप इंडेक्स से भी देख सकते हैं, ये 0 से शुरुआत होगी, 10 से 0 1 2 3. ओके, सो थर्ड इंडेक्स पर आएगा 40 एंड फिफ्थ पर आएगा 60. सो 40 60 इज योर आंसर. वेरी इजी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following options is not correct? If we try to read a text file that does not exist, an error occurs. बिल्कुल सही है ना? अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो how can we read it? If we try to read a text file that does not exist, the file gets created. ये बिल्कुल गलत है. अगर हम किसी चीज को रीड करना चाह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो how can it create it? So actually correct answer is this, because हमें क्वेश्चन में पूछा है which is not correct. ठीक है, आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को नॉट करेक्ट या करेक्ट वाले को हो तो ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो. इज करेक्ट पूछा है या इज नॉट करेक्ट पूछा है, क्योंकि अगर आपको इज करेक्ट पूछा, आपने ऑप्शन ए पढ़ा और आप ऑप्शन ए मार्क करके चले जाओगे और आंसर हो जाएगा आपका गलत. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल myfile.txt? सो आपको बस पहली लाइन पढ़नी है. ओके, सो हम देखते हैं. देखो यहाँ पर माई फाइल डॉट रीड है. रीड क्या करता है? पूरा कंटेंट रीड कर देता है. गलत हो गया, ऑप्शन रॉन्ग. ओके, माई फाइल ऑफ रीड डॉट रीड एन क्या करता है? एन बाइट्स तक रीड करता है. हमें नहीं पता फर्स्ट लाइन में कितनी बाइट्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्शन रॉन्ग. एक बार ऑप्शन डी में देखो, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स. रीड लाइन्स क्या करता है? हमें एक नेस्टेड लिस्ट दे देता है. हमें एक लिस्ट दे देता है ऑफ ऑल द लाइन्स. तो ये गलत है, सारी लाइन्स की लिस्ट देता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, माई फाइल डॉट रीड लाइन. रीड लाइन क्या करता है? लाइन बाय लाइन रीड करता है. सो करेक्ट आंसर इज दिस. ओके, assume that the position of the pointer is at the beginning of the third line. ओके, थर्ड लाइन के बिगनिंग में है इन अ टेक्स्ट फाइल. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन्स? बाकी सभी रिमेनिंग लाइन्स रीड करनी है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड? पहली बात, रीड तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि रीड तो सिर्फ मतलब पूरा कंटेंट रीड कर देगा. ओके, रीड लाइन क्या करेगा? सिर्फ अगली थर्ड लाइन रीड करेगा, तो ये भी गलत है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स. रीड लाइन्स क्या करेगा? आगे की सारी लाइन्स रीड कर देगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी देख सकते हो हमने मतलब बहुत कम टाइम में, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इट इज टेकिंग मोर टाइम. अगर आप ये मेंटली सॉल्व करने बैठोगे, यू विल मार्क दीज आंसर्स इन 5 सेकेंड्स, 5 to 10 seconds, not more than that. तो ये तो बहुत easy questions है. Okay, a text file student.txt stored in the storage device. Identify the correct option out of which options to open the file in read mode. हमें read mode में खोलनी है. Okay, and text file है. तो ऑप्शन ए में देखो RB मोड दिया है, ये तो बाइनरी फाइल है, गलत हो गया. ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट में दिया है W मोड. W तो राइट होता है, ये भी गलत है. थर्ड में देखो रीड मोड दिया ना R, तो ये ऑप्शन सही है. एंड फोर्थ में कुछ भी नहीं दिया है, डिफॉल्ट मोड भी रीड मोड होता है, तो इसलिए ये दोनों सही. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ. सो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट, द रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज.
सो बेसिकली ये पूछ रहा है इनपुट जब आप फंक्शन यूज करते हैं तो उसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या डेटा टाइप होता है एक्चुअली. सो हमें पता है रिटर्न डेटा टाइप कौन सा होता है उसका, स्ट्रिंग. करेक्ट आंसर इज स्ट्रिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. किसको स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप में इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं किया जा सकता. ऑप्शन ए देखिए, प्लस. प्लस तो यूज किया जा सकता है, दो स्ट्रिंग्स को हम मिला सकते हैं प्लस करके, है ना, वी कैन कॉन्कैटिनेट. तो ये तो मतलब गलत ऑप्शन. ठीक है, पूछा है कैन नॉट बी, कौन सा नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है इन. इन भी यूज किया जा सकता है ना, जैसे मैंने लिखा है हितेश स्ट्रिंग बनाई एंड देन आई चेक्ड आई इन हितेश या आई इन एस टी. ओके, एस टी को मैंने हितेश डिफाइन कर दिया एंड आई इन एस टी. सो इट विल गिव मी ट्रू और फॉल्स वैल्यू, है ना. तो ये दिस कैन बी यूज. ऑप्शन सी देखिए, स्टार. स्टार मार्क भी यूज किया जा सकता है ना. अगर मैं हितेश लिखकर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, मतलब स्टार 3 कर दूं, तो इट विल बी प्रिंटेड 3 टाइम. So it can be used. But option D is correct because this slash cannot be used. Division कैसे हो सकती है किसी भी string में? So it cannot be used. Next, consider a tuple this and identify which of the result will which of the statement will result in an error. कौन सी इनमें से एक error देगा? Okay, so option A देखिए, print tuple 1 of 2. ओके, सेकेंड इंडेक्स में ट्यूपल 1 का सेकेंड इंडेक्स प्रिंट कर दो. सो देखो सेकेंड इंडेक्स पर क्या है डिजिट, 1 0 1 2. सो सेकेंड पर 25 है, इट विल प्रिंट 25. तो ये तो बिल्कुल सही है, इट विल नॉट रिजल्ट इन एरर. ऑप्शन सी पर आओ एक बारी, ऑप्शन सी पर चेक करो, प्रिंट मिनिमम ऑफ ट्यूपल 1. मिनिमम भी बिल्कुल सही है, मिनिमम फंक्शन प्रिंट कर देगा ये. मिनिमम क्या है इसमें से, 10 है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया. एंड देन प्रिंट लेंथ ऑफ ट्यूब 1. ट्यूब 1 की लेंथ भी प्रिंट कर देगा, 4 एलिमेंट्स आर देयर. सो विच इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर क्या दिया हो, ट्यूब 1 ऑफ 2 इक्वल्स टू 20. यहाँ क्या किया हुआ है, वी हैव असाइंड द वैल्यू. सो असाइंड द एलिमेंट ऑफ अ ट्यूपल, है ना, हमने एक ट्यूपल के एक एलिमेंट को असाइन कर दिया. So this is wrong because tuples are immutable data types. They cannot be changed. Once assigned, they cannot be changed. Okay. Okay. So let's continue. Let's go to the next question. So question 11 says, which of the following statement is incorrect in the context of binary files? Option A, information is stored in the same format in which the information is held in the memory. This is 100% correct. ठीक है, जो information होती है हमारी, it is stored in the same format, that is the binary format. Okay, so no character translations takes place. This is also correct. Every line ends with a new line character. This is wrong. This is wrong. So correct answer is this. Why is this wrong? Because in binary files, आपको पता है we use the pickle module, है ना, to dump the data. And while dumping, what do we dump? We dump nested lists. So in binary files, the data is stored in the form of nested lists. So how can it end with a new line character? So this is wrong. And option D says pickle module is used for reading and writing. This is 100% correct. So correct answer is option C. Okay, what is the significance of the tell method? What is the significance of the tell function? Okay, tell tells us the path of the file. This is wrong. Tell does not tell us the path of the file. Tells the current position of the file pointer within the file. This is 100% correct. So what does tell function do? It tells us the current position. कहाँ पर exactly हमारा अभी file pointer located है within the file. So this is the correct option. Option C says tells us the end position. नहीं. Checks the existence of the file at a desired location. ये भी नहीं. Okay, question number 13. Which of the statement is true? Pickling creates an object from a sequence of bytes. No, this is wrong. Pickling is used for object serialization. This is true. Object को serialize करने के लिए pickling is used for object serialization. Object serialization means converting the data from the text format to the binary format. Okay, so this is called object serialization. So this is correct. Pickling is used for object deserialization. Deserialization, no.
it is unpickling is used for object deserialization. Option D is pickling is used to manage all types of files in Python. No, it is used for managing binary files. Okay. Next question says syntax of seek function in Python is myfile.seek this where myfile is the file object. What is the default value of reference point? If we do not get give the reference point, what is the default value? So default value is 0. Okay, so अगर आपने यहाँ पर देखिए 3 डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं 0 1 एंड 2. सो अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है सो इट कंसिडर्स इट टू बी 0. ओके. Next question says which of the following components are a part of function header in Python? So function header क्या होता है? जहाँ पर आप define function of और उसके अंदर bracket के अंदर parameters की list लिखते हैं. So that is called the function header. So option A says function name. बिल्कुल फंक्शन नेम तो होना ही चाहिए. ऑप्शन बी सेज रिटर्न स्टेटमेंट. नो, रिटर्न स्टेटमेंट तो सबसे लास्ट में आती है. नो. ऑप्शन सी सेज पैरामीटर लिस्ट. सो ऑप्शन बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए एंड सी आर बोथ करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन डी. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट. सो देखिए आप इनके सबका सीक्वेंस देखिए. p equals to 100, r t equals to 2, these this and these. So which of the following is correct? आप ये सोच सकते हैं थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन बिकॉज ये थोड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. वाई आप बोलेंगे कैसे? बिकॉज द डिफॉल्ट फंक्शन वैल्यू टेक्स प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड. इसका मतलब क्या है? ये रूल है एक. While defining the name of the function, while defining the function header, there is a rule कि आपको function के default values कहाँ से देनी है? From the right hand corner, right के last से शुरू करनी है. You cannot define the function header from the left or in the mid. तो जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में पहले यहाँ पर इन्होंने p equals to 100 कर दिया, फिर r को डिफॉल्ट नहीं किया एंड देन लास्ट में भी डिफॉल्ट कर दिया. दिस इज रॉन्ग. अगर ये p equals to 100 r की जगह आ जाता और r उधर चला जाता तो ये सही होता. हमें राइट से शुरू करना है, लेफ्ट से वी कैन नॉट स्टार्ट. और अगर लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो फिर बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए. मतलब ये r की भी वैल्यू अगर हम कुछ दे देते तब भी ये सही होता. ओके. ऑप्शन बी सेज p equals to 100, r equals to 8 and t. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. ये तो लेफ्ट हैंड से शुरू हो गया. ये देखिए ना ऐसे शुरू हो रहा है. हमें चाहिए राइट हैंड से, तो ये गलत है. नेक्स्ट इज p equals to p नहीं दिया, r equals to 8 and t. ये भी गलत है. बीच में नहीं आ सकता, राइट कॉर्नर से शुरू करना. एंड ऑप्शन डी में p नहीं दिया हुआ, r एंड t की वैल्यू दे रखी है. सो दिस इज करेक्ट. देखिए यहाँ पर ये राइट हैंड कॉर्नर से शुरू हुआ. सो दिस इज करेक्ट. ओके. Next is which of the following is the correct way to call a function. हमें call करनी है function को, define नहीं करना. So calling a function देखिए call तो कुछ भी नहीं होता, ये गलत है. return नहीं होता. return तो function के अंदर एक value return करने के लिए होता है, ये गलत है. define is used for defining a function, def. and my function ये बिल्कुल सही है. हम सिर्फ function का नाम लिखकर उसको call करते हैं. Okay. Next is which of the following acts as a default delimiter in a CSV file. So what a question. What a बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तो. CSV का अगर आपको नाम भी पता है ना तब भी आप इसका आंसर दे दोगे. फुल फॉर्म पता है अगर आपको. CSV is what? Comma separated values. So correct answer is comma. Okay. So default delimiter is comma. Next, syntax for opening student.csv in write mode. Okay, write mode. ये है हमारी ये कोड है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस न्यू लाइन इक्वल्स टू कोट्स, एम्प्टी कोट्स. सो व्हाट इज दिस? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो करेक्ट आंसर इज देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं. अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल. नहीं, ये न्यू लाइन के लिए नहीं है. न्यू लाइन की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं दी हुई है. इट इज एम्प्टी. अगर यहाँ पर \n होता तो न्यू लाइन एडेड होती. Empty string gets appended to the first line. No, this is wrong. Empty string gets appended to all the lines. This is also wrong. EOL translation is suppressed. ये बिल्कुल सही है. EOL stand for end of line.
एंड ऑफ लाइन, देखिए अगर आप इस न्यू लाइन को नहीं देंगे ना तो बाय डिफॉल्ट दिस न्यू लाइन इज बैकस्लैश n। तो ये क्या करेगा, आपकी फाइल में, आपकी CSV फाइल में एक लाइन के डेटा के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ देगा। ओके, एक लाइन का जैसे डेटा आया, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन छूटी होगी, फिर उसके बाद एक लाइन का डेटा आया, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन छूटी होगी। सो ऐसे प्रिंट करेगा ये। इसीलिए इस एंड ऑफ लाइन को, ट्रांसलेशन को सप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए, ताकि ये लाइन ना आए, ये खाली वाली जो लाइन आ रही है ये ना आए, वी ऐड न्यू लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या करेगा, इस न्यू लाइन को हटा देगा, बैकस्लैश n तो अब रहा नहीं, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर हट जाएगा। So this is the correct answer. Next, what is the correct expansion of CSV? ये तो अभी हमने डिस्कस करी। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ए एंड बी, कॉमा सेपरेबल एंड कॉमा सेपरेटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, next question is, which of the following is not a function or method in a CSV module in Python? CSV मॉड्यूल का कोई मेथड या फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए राइट रो है, राइट रो है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। राइटर, राइटर भी होता है, CSV डॉट राइटर, राइटर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ये गलत हो गया। रीडर भी गलत, मतलब रीडर ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये एक फंक्शन होता है, CSV डॉट रीडर यूज करते हैं हम रीडर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एंड CSV डॉट रीड कुछ नहीं होता, इसीलिए दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज, which of the following is the default extension of Python file? कौन सा इनमें से डिफॉल्ट एक्सटेंशन? बहुत इजी क्वेश्चन है, जब 11th में आपको पाइथन इंट्रोड्यूस कराई जाती है तब ये सिखाया जाता है .py एक्सटेंशन, बहुत इजी। ओके, which of the following symbol is used in Python for single line comment? single line comment के लिए we use hashtag, okay, and for multi line comment we use triple quotes, triple quotes, or we can say 3 times single quotes, 3 times single quotes, or we can use even 3 times double quotes. Okay, okay. Question number 24 says, which of the following function statement opens a binary file record.bin in write mode and writes this data on the binary file? So first of all we have to open it in write mode, we have to open a binary file in write mode. So mode क्या होगा, WB. ओके, सो देख लेते हैं कि इसमें WB है, इसमें WB है, इसमें WB है, इसमें WB प्लस है, ये गलत हो गया, इसमें AB है, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन A एंड B में से कोई सही होगा एक। ओके, ऑप्शन A एंड B में से एक सही होगा। ओके, सो ऑप्शन A says with open this and WB mode है, जो कि सही है, as my file pickle.dump lst1 my file, and ऑप्शन B में सब कुछ सेम है, बस यहाँ my file lst1 कर दिया। So my file is the file handle and lst1 वो लिस्ट है which we have to dump. So अब ये एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है वैसे। ये याद रखने वाली चीज होती है कि हमें डंप का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, पहले उसमें हमारा फाइल हैंडल आता है या पहले उसमें हमारी लिस्ट आती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पहले हमारी लिस्ट आती है जो हमें अपेंड करनी है, नेस्टेड लिस्ट, एंड देन वी राइट द फाइल हैंडल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 25. Which of these about a dictionary is false? Okay, option A says the values of a dictionary can be accessed using keys. बिल्कुल सही है, हम उसकी की को लिखकर we can access the value. मतलब ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है, इस false पूछा है। ओके, इस false. Which of the keys of a dictionary can be accessed using values? ये गलत है। So correct answer is option B. हम values पता लगा सकते हैं यूजिंग कीज, बट वी कैन नॉट एक्सेस कीज यूजिंग वैल्यूज, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी सेज डिक्शनरीज आरंट ऑर्डर्ड, ये बिल्कुल सही है, दे आर नॉट ऑर्डर्ड, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। ओके, एंड डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ये भी बिल्कुल सही है, दे आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, दे कैन बी चेंज्ड। सो वी हैव डन 25 क्वेश्चंस, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन सी। ओके, सो वी आर बैक now. We are going to do section C, and section C there are 6 case study based questions, and out of 6 you have to attempt only 5 questions, so there is a choice of one question, you can leave one question. Okay, so let's get started.
So Rohit, a student of class 12, is learning CSV file module in Python. During examination, he has been assigned an incomplete Python code to create CSV file student.csv. Okay, help him completing the code which creates the desired CSV file. Okay, so this is the CSV file. हमें CSV फाइल में क्या क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट चाहिए एंड देन क्लास चाहिए. ओके, सो दिस इज द इनकम्प्लीट कोड. द बेस्ट ट्रिक इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोड को और क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली रीड करना. जैसे क्वेश्चंस आपके सारे यही हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. बेसिकली आपको इन स्टेटमेंट्स में ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट पढ़िए, उसका ऑप्शन पढ़िए, दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, उसका ऑप्शन पढ़िए. वरना आप एक एक बार पढ़ोगे पूरा कोड, फिर सारे क्वेश्चंस करने बैठोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. सो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है. देखिए हमें CSV फाइल बनानी है. सो यहाँ दिया हुआ है इम्पोर्ट डैश, और ये तो बहुत इजी है. CSV मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. CSV फाइल बनानी है तो CSV मॉड्यूल. अगर बाइनरी फाइल का क्वेश्चन होता वी वुड हैव टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल. सो ऑप्शन क्वेश्चन 50 सेज मार्क जो हमारा ब्लैंक स्पेस है स्टेटमेंट 1, उसमें क्या आएगा. सो इम्पोर्ट CSV विल बी करेक्ट. तो ऑप्शन ए दिया है CSV फाइल, गलत है. ऑप्शन बी दिया है CSV कैपिटल में नहीं होता. ऑप्शन सी है CSV स्मॉल, ये सही होता. ऑप्शन डी CVS कुछ भी नहीं होता. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, अभी बोला है FH दैट इज फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन डैश कॉमा डैश एंड न्यू लाइन इक्वल्स टू डैश. अब ओपन में आपको पता है पहले फाइल का नेम आता है, तो फाइल का नेम क्या है, स्टेटमेंट स्टूडेंट डॉट CSV, एंड उसके आगे क्या आता है, मोड आता है. मोड क्या दिया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग, मोड कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें खोलना है ड्यूरिंग पाइथन. ओके, टू क्रिएट हेल्प हिम. ओके, सो मोड हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें देखना पड़ेगा ऑप्शंस में से ही कि कौन सा मोड सही होगा. ओके, सो ऑप्शन देखिए 51 स्टेटमेंट 2 में हमें ब्लैंक फिल करना है. उल्टा से चलते हैं. देखिए यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट डॉट CVS, ये तो बिल्कुल ही गलत है. हमें स्टूडेंट डॉट CSV फाइल क्रिएट करनी है. ऑप्शन सी से स्टूडेंट डॉट CSV एंड रीड मोड इज देयर. रीड मोड जो कि गलत है. हमें डेटा अपेंड करना है, डेटा डालना है, डेटा लिखना है. ठीक है, तो इट कैन नॉट बी यूज. रीड मोड कैन नॉट बी यूज. एंड ऑप्शन ए सेज स्टूडेंट डॉट CSV एंड WB मोड किस लिए यूज होता है, राइट इन बाइनरी फाइल्स. ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ये तो CSV है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, स्टूडेंट डॉट CSV एंड राइट मॉड्यूल. ओके, नेक्स्ट 52 स्टेटमेंट नंबर 3 पर आइए. STU राइटर इक्वल्स टू CSV डॉट डैश. तो ये क्या है, ये राइटर ऑब्जेक्ट बना है. ये STU राइटर इज अ राइटर ऑब्जेक्ट. सो वी कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. ये देखिए, रीडर, हमें राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है तो रीडर वाले ऑप्शंस गलत हो गए. ठीक है, हमें राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है, रीडर वाले फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गए. एंड सी सेज राइटर ऑफ FH एंड राइटर ऑफ माई फाइल्स. ऑप्शन डी सेज राइटर ऑफ माई फाइल. तो राइटर के अंदर आता क्या है, पेरेंथीसिस के अंदर, राइटर पेरेंथीसिस के अंदर आता है हमारा फाइल हैंडल. तो फाइल हैंडल इस केस में क्या है, हमारा FH. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. डी गलत हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, सो मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट नंबर 4. तो पहले आप ये सारा देख लीजिए. डेटा हमने ये ली, एक एम्प्टी लिस्ट ली, हेडर डाल दिया, हेडर अपेंड कर दिया डेटा में, एंड देन हमने रेंज चलाई 0 से मतलब 4 तक चलेगी ये रेंज. 5 टाइम्स इट विल रन एंड हमने डेटा उसमें अपेंड कर दिया. ओके, हमने पहले डेटा मांगा है. ओके, नाउ व्हाट इज दिस, REC रिकॉर्ड इक्वल्स टू लिस्ट में हमारी स्टेटमेंट 4 का ब्लैंक है. सो हम क्या चीज अपेंड करेंगे. देखिए हमें एक लिस्ट बनानी है ना, ये हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी हेडर डेटा वाली. ये लिस्ट हमें पहले, ये रिकॉर्ड वाली लिस्ट हम डेटा में अपेंड करके उसको फिर हम वी विल स्टोर इट इन द CSV फाइल. सो रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड विल बी लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन. So this will be our statement number 4. So देखिए, identify the suitable code for blank space.
इन लाइन मार्क द स्टेटमेंट 4। सो हमें क्या अपेंड करना है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, नेम। तो आप ऊपर देखेंगे तो ये सारे के सारे जो है ये स्मॉल में है, कैपिटल में सिर्फ क्लास का सी है और कोई भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी पेरेंथीज कोई भी कोड्स नहीं दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। सो दिस वी हैव टू ऐड इनटू द लिस्ट। इसकी हमें लिस्ट बनाकर उसको अपेंड करेंगे हम अपनी पूरी जो मेन लिस्ट थी, दैट इज डेटा। तो हमारे पास बन जाएगी नेस्टेड लिस्ट। ओके, सो यही हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 5। डेटा डॉट अपेंड व्हाट, अपेंड क्या करेंगे, ये वाली लिस्ट, रिकॉर्ड। सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, 54 का ऑप्शन सी इज सही। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड वाली हमें करनी है इसमें अपेंड। ओके, लास्ट आता है एसटीयू राइटर डॉट डैश डेटा। तो एसटीयू राइटर में हमें क्या लिखना है, एसटीयू राइटर क्या था, राइटर ऑब्जेक्ट। तो राइटर ऑब्जेक्ट में हम डॉट लगाकर लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हमें पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा फंक्शन यूज करोगे भाई, तो डम्प फंक्शन यूज करोगे, लोड फंक्शन यूज करोगे, राइट रोज फंक्शन यूज करोगे, या राइट रो फंक्शन यूज करोगे। सो देखिए, डंप एंड लोड तो सीएसवी से इनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, लेना देना कोई नहीं है, ये तो बाइनरी के होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी या डी में से ही होगा। नाउ राइट रोज या राइट रो, राइट रो फंक्शन कब यूज किया जाता है, जब हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है। बट यहाँ पर क्या है, 5 लाइन्स है, 5 स्टेटमेंट्स है, 5 लिस्ट है ना, हमें वो अपेंड करनी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट रोज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने सक्सेसफुली आज पूरे 31 क्वेश्चंस कर लिए, एंड इन नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग सेक्शन बी of this paper. So thank you for watching my video. Please like and subscribe to my channel. Thank you very much for watching. Bye bye.